Vivo1723 जिनका भी नाम है करेक्ट कर लो बेटा। गुड इवनिंग। On Saturday we have started percentage topic, but due to net glitch we could not continue, right? No. So start with percentage again. Meaning of percentage. Okay. What is the meaning of percentage? Per 100. Percentage means per 100 means upon 100. Suppose 5%, right? So 5 by 100. 6 2 by 3%. 20 by 3 upon 100. 0.3%. 0.3 upon 100. Okay. So either natural number हो or in fraction or in decimal. Convert percentage to fraction. Convert fraction to convert percentage to fraction. Convert from percentage to fraction. Okay. So आप divide by 100 करोगे. Okay ना? If क्वेश्चन चेंज करता हूँ, if 5 convert into percentage, तो percentage में you have done divide by 100, so convert into percentage, तो आप क्या करोगे? Into percentage, into 100, very good, means 500%. 0.3 convert into percentage, so 0.3 into 100%, that is 30%. Okay. 6 2 by 5 convert into percentage. Okay. So 32 by 5 into 100%. Okay. So 525 and 25 into 30. 25 into 30. 32. Yes, 32 into 20. 32 into 20. Sorry, 20. Okay. Means 640. Right? समझ में आ गया? So whenever convert percentage to fraction, divide by 100. From fraction to percentage into 100. Okay. Now next. Suppose question आ जाए, 70 is what percent of of 100? तो अब क्या लिखते हो आंसर? 70 is what percent of 100? Mm-hmm. 70%. Beta, method, what is method? Method. Answer 70 correct है. Upon 100 into 100. Very good. Now, suppose क्वेश्चन चेंज करता हूं मैं. 1/3 is what percent of
of 1/2. Answer. $66.66. Okay. Okay, now my question is, which is correct? First, A, 1/2 upon 1/3 into 100, or 1/3 upon 1/2 into 100. A और B, कौन सा करेक्ट है? B. Okay. किसी ने ए लिखा है? Vivo 1723 बेटा, अब राइट योर करेक्ट नेम. जिसने लास्ट में आपने आंसर दिया है बिफोर कनिका, राइट योर बेटा करेक्ट नेम. ओके. डी. अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आता है. इस टाइप क्वेश्चन में ऑलवेज वन क्वेश्चन कम्स इन माइंड कि मैं ए से लिखूं या बी से लिखूं, आइदर ए और बी. ओके. फॉर दैट वेरी इजी मेथड. मेथड क्या है तो देखो क्या करना है आपको. 1/3 is means equals to x% of का मीनिंग क्या होता है? What is the meaning of in mathematics? Of means into 1/2. Okay. So 1/3 is x upon 100 into 1/2. Okay. So x equals to 200 upon 3. So 66.61%. Okay. 66.61%. ठीक है, समझ में आ गया. 70 is what percent of 100? Means 70 is x% of 100. Okay. So 70 is x by 100 into 100. X equals to 70%. Okay. Yes बेटा, इक्वेशन बना के सॉल्व करो, दैट इज मच बेटर. यस बेटा, मन दोनों सेम है, बट समटाइम्स आप मिस्टेक कर सकते हो उस मेथड से. सो ऑलवेज गो थ्रू बाय प्रॉपर मेथड. ठीक है ना. निकालो एक्सरसाइज 6. ओके. सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10. एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 1 to 10. बेटा पेज नंबर 40. अच्छा, जो फर्स्ट लेक्चर बेटा, फर्स्ट चेंज योर नेम.
आपका जो मोबाइल में नेम रखा है Vivo 1723, व्हाट्स योर नेम? आरुषि। बेटा राइट योर करेक्ट नेम। ओके, जहाँ Vivo 1723 है ना, उसको चेंज कर लो आप। ओके, क्योंकि अटेंडेंस आपका नहीं बनेगा अदरवाइज। ओके, नॉट ए प्रॉब्लम। आप लिव या चेंज कर लो ना, चेंज योर नेम। देखो आप उसमें पार्टिसिपेंट्स में जाओ, पार्टिसिपेंट्स में जाओ, सबसे ऊपर आपका नाम होगा, राइट, उसमें चेंज कर लो। रीनेम का ऑप्शन है, देखो पार्टिसिपेंट्स एंड रीनेम। वेरी गुड आरुषि, देखो टॉप पे आपका नाम आ गया। ओके, बेटा मैथ फंडामेंटल बुक पेज नंबर 40 एक्सरसाइज 6। वेरी गुड मन। सोहम, कनिका, हेत, गुड। ऋषिकेश, गुड। नो, बताओ बेटा फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट इज बी 1/15। ओके, 1/15। वेरी गुड, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन सेकेंड 3/500। वेरी गुड, 3/500। वेरी गुड। क्वेश्चन थर्ड, थर्ड ए 1/12। गुड, 1/12। वेरी गुड। क्वेश्चन फोर्थ, फोर्थ इज 525%। ओके, और डी लिखा है इसी के साथ में बेटा, डी नहीं, ए होगा इसका, ए। ओके, क्वेश्चन फिफ्थ, फिफ्थ is B 1/2%. Very good, good. Question number 6 is B 2.5%. Okay, okay, good, good. Now question number 7, C 700%. Okay, correct है। Okay, question number 8, C that is 10%. Very good, 10%. Okay, good. Question number 9, 9 is 0.2%. Okay, okay, very good. Question number 10 is C 12 1/2%. Okay, very good. So 1 to 10, any problem? From 1 to 10. Question 9. Okay, 9 is what percent of 4 kilometer, means X percent of 4 kilometer means 4,000 meter is 8 meter, is 8 meter. Okay, so percentage remove करके upon 100 कर दिया मैंने। No, 20 कैंसल,
So x into 40 is 8. X is 1 by 5. That is 0.2. Yes, Vera. Question number 10 also. Okay. Question number 10. 1 quintal 25 kg. So 1 quintal is how many kg? 1 quintal is 100 kg. Very good. And 100 kg and 125. That is means 125 kg is X% of 1 metric ton. So 1 metric ton how many kg? 1 metric ton 1000 kg. Very good. Okay. So percentage remove upon 100. 20 cancel. So 12.5 answer. 12.5. Okay. Now next. एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. 37.5% into 62.5% into 100, 12.5% into 512 upon 135. इसको सॉल्व करो. सो हम ट्राई करो. इसमें ऑप्शन तो है नहीं आपके पास बेटा. आप कैसे करोगे? 9 वाला ट्रिक जब ऑप्शन हो तो. ओके. ओके.
इसका आंसर 1 है क्या? आंसर इज 1. यस, आंसर इज 1. अभी आते हैं दिस क्वेश्चन थ्रू अनदर मेथड. डिस्कशन थ्रू अनदर मेथड. आप सबने रेसिप्रोकल लर्न किया है? रेसिप्रोकल? Yes, no. So what is the reciprocal of 12? Reciprocal of 12? 1 by 12. Okay. And percentage value, beta? Percentage value? Percentage. 100 by 12. Convert into percentage, beta. 8.33%. 1 by 12 into 100%. That is 8.33%, right? Now. The reciprocal of 8. Reciprocal of 8. Here again, convert into percentage value. 12.5%. Very good. 1 by 8 is 12.5%. Okay? No. अभी ध्यान देना है यहाँ पे. No. Very good. 1 by 8 is 12.8%, 12.5%. Okay, no. So 2 by 8 is how much? 2 by 8 is 12.5 into 2, 25%. Very good. Beta 3 by 8 is how much? 3 by 8, 37.5%. Very good. 4 by 8. 4 by 8 is 50%. Good. 5 by 8, 62.5%. Okay. 6 by 8 or 3 by 4, that is 75%. Okay. 7 by 8. 87.5%. 8 by 8, that is 1, is 100%. 9 by 8. 9 by 8. No. 9 by 8 ko, can you write 1 plus 1 by 8? No. And 1 plus 1 by 8, 1 means 100%. And 1 by 8 is 12.5%. 112.5%. ओके, ये चार्ट नोट डाउन कर लो पहले, क्विकली नोट डाउन करो चार्ट. Okay, no. Some important reciprocal. Okay, first is 12.5%. Second is 37.5%. Third is 62.5%. And fourth is 87.5%. Okay, now. जहां कहीं भी in question, okay, if you see 37.5% or 62.5% or 87.5%, always write instead of 87.5%, 7 by 8. Instead of 62.5%, 5 by 8. Instead of 37.5%, 3 by 8. जहां कहीं भी परसेंटेज में दिया हो, convert into fraction. Convert into fraction. Okay? No. आते हैं इस क्वेश्चन पे. 37.5%, meaning three by 8, very good. 62.5%, very good.
112.5%, 9 by 8 into 512 upon 135. Okay, 8 cube is 8 cube. 512 means cancel. 3 into 5, 15 into 9, 135 cancel. Answer is 1. समझ में आ गया? Okay. So which is easier method, A or B? जहां कहीं भी परसेंटेज में दिखे, always convert into fraction. Always convert into fraction. Okay? No. Suppose in CLAT 2018, I think 18, maximum question came from only reciprocal. Like question was 137.5% into 162.5% into 187.5%. Okay, into I will solve करते हैं x, right? तो 137.5% means 100 plus 37.5% into 100 plus 62.5% into 100 plus 87.5%. Okay, no. So 100% means 1 or 37.5% is 3 by 8. Okay, into 1 plus 5 by 8 into 1 plus 7 by 8. Okay, यहाँ पे ले लो क्वेश्चन x equals to 512. X equals to 512. Okay, so into 512. No. So 11 by 8 into 13 by 8 into 15 by 8 into 512. Okay, cancel. 13 into 15, 195 into 11 means 5, 4, 2, 1, 4, 5 answer. Okay, समझ में आ गया? Okay, चलो बेटा सॉल्व करो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 21, 11 to 21.
60% is 105. Yes, beta. Okay, done. Yes, कर लो assume. चलो आंसर चेक करते हैं ना. फर्स्ट क्वेश्चन 11. क्वेश्चन नंबर 11. आंसर इज सी 32. अब यहाँ स्टॉप होते हैं. देखो आप 60% less than 80, right? Less than 80. So 60% of 80 is 32 and less than. So 80 minus 32 value is 40. Sorry. This is 48. Okay. मैं डायरेक्ट आंसर लिखा. 48. 48 now. आंसर 32. अभी देखो सपोज मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ. 60% मोर देन 80 देन आंसर. यस साक्षी. यस करेक्ट है. मैं उस पर ही आ रहा हूँ. ओके 80 प्लस 48 दैट इज 128. नो अभी देखो can I write 60% less? Another thing, 60% less is 40%. 100 minus 60% is how much? 40%. So 40% of 80. क्या बनेगा आपका आंसर? 40% of 80. Answer 32. Okay. 60% more means 160%. 60% more means 160%. So 160% of 80 is how much? 128. अब बताओ ज्यादा इजी कौन सा है? ए और बी. ए और बी. बी. वेरी गुड साक्षी. आपने जो अप्लाई किया
वो करेक्ट था आपका, राइट नो. सो ऑलवेज रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन परसेंटेज. जहां कहीं भी पूरे मैथ्स में परसेंटेज मोर मेंशन हो, परसेंटेज मोर मीन्स 100 प्लस, परसेंटेज लेस मीन्स 100 माइनस. ओके, सपोज 50% मोर meaning 150%, 20% more means 120%, 30% more 130. आरुषि समझ में आ रहा है बेटा आपको? 30% लेस 70%. ओके, समझ में आ गया ये पॉइंट? नो. अभी आता है क्वेश्चन सेकंड, सॉरी 12. इसका बताओ आंसर 36. 200% ऑफ ए नंबर इज 36. So 80% is how much? Cross multiplication. No. Question number 13. 13 is 105. Very good. No. 37.5%. 37.5% means 3 by 8. 37.5% is 3 by 8. That is 45. So 87.5% means 7 by 8 is how much? Cross multiply. Okay. So answer is 105. Question 14. 37.5% means 3 by 8. जहां पे भी 37.5% है, write on 3 by 8 into 48. Okay? No. Question 15. 15th is 24. Okay? 24. Very good. 24. Question number 16. Question number 16 is 5.5. Okay, correct है 5.5. Very good. Okay. Question number बेटा 17. 0.0625. Okay, very good. Very good now. Question 18. 18 is 10.2. Very good. 10.2. Correct है. Question number 19. 29.5%. Okay. 29.5%. Okay. Question number 20 is 0.8. Okay. 0.8 or 0.08? It is 0.8 होना चाहिए because 125% upon 100, so 100 upon 125, so 0.8. Okay. Question number 21, 0.0035. Okay. अब मुझे बताओ फ्रॉम क्वेश्चन 13 से 22 में कोई प्रॉब्लम है? सॉरी 21 में कोई प्रॉब्लम? 13 to 21. No. क्वेश्चन 19. ओके बेटा, चेक कर लेते हैं 19. क्वेश्चन 14. ओके, 19 and 14. ठीक है, 19 and 14. ओके, तो फर्स्ट सॉल्व 14. 37.5%. चेक कर लेते हैं फॉर्म, वेट कर लो. 37.5% of 48. So 37.5% is 3 by 8 into 48. So 8 6 and 6 into 3 is 18. Question 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19th एंड क्वेश्चन नंबर 18th को आप देखो ध्यान से. 18th and 19th. In 18th all options are in fraction or decimal. दिया हुआ है all fraction, all options are in fraction. Fraction means decimal. Okay, अब चेक कर लो 18. And in question 19 all options are in percentage. ये दोनों में डिफरेंस है.
आपने नोटिस किया 18 एंड 19 में ये पॉइंट, 18th में फ्रैक्शन में है एंड 19th में परसेंटेज में है, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको 19th में बेटा, नहीं ऑप्शन से चेक करो पहले बेटा, आलोची ऑप्शन चेक करो। 18th के ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन मींस डेसिमल, ओके, एंड 19th में परसेंटेज में दिया हुआ है नो। तो अभी क्या करना है, उसमें 19 देखो आप, 40% ऑफ 20% प्लस 30% ऑफ 25% ऑफ 50% ऑफ 28%, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन each part total there are 2 percentage sign दिया हुआ है, 1 and 2 percentage, first and 2 percentage, first and 2 percentage दिया हुआ है नो। तो क्या करना है आपको, कन्वर्ट 1% इंटू फ्रैक्शन एंड अनदर परसेंटेज को एज इट इज रखना है आपको। 1% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है एंड अनदर परसेंट एज इट इज, ओके। सो 40/100 into 20% plus 30/100 into 25% plus 50/100 into 28%, ओके। अब चेक कर लो, 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, you get 2, ठीक है। सो 8% प्लस 7.5% plus 14%. Answer is 29.5. Okay. अब सॉल्व करो बेटा क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23। अच्छा 20 सॉल्व करना है, ओके। आप हमें स्टूडेंट 22 एंड 23 सॉल्व करो। क्वेश्चन 20, x is 125% of y. So x is 125/100 y. So y is 100/125. That is 0.8. Okay. Okay now. Question 22, answer B. Okay now. ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन 22। बेटा x% of y plus y% of x. So xy% plus xy%. So 2xy%. Answer. Okay. Or 2% of xy. ठीक, question 22. Question 23 is B. So हम करेक्ट है बेटा। x% of y is xy% plus what percent of x means
x what percent equals to x percent plus xy परसेंट लिख सकते हैं. देखो आप क्वेश्चन 23. ओके, चेक करो. xy परसेंट कैंसल. ओके, so x what percent is x percent. So what is the value of x? What x? ओके, समझ में आ गया. बेटा क्वेश्चन नंबर सॉल्व 24, 25, 26, 27. All 4 questions are similar. 24, 25, 26, 27. नहीं आंसर मत पोस्ट करो बेटा, आंसर पोस्ट मत करो, सॉल्व कर लेने दो बच्चों को. सो hearing. Yes, very good. क्या बात है, इतने सिमिलर हैं कि ऑप्शन भी सेम आ रहे हैं. वेरी गुड. चलो ब्रेक पाओ. ओ मैडम बताओ क्वेश्चन नंबर बेटा, क्वेश्चन नंबर 24. 24 is B. Okay, 24 is B. Very good. 25 is B. 25 ना ऑलरेडी क्लैट में आ चुका है. 25 नंबर क्वेश्चन 25 क्लैट के एग्जाम में. ओके, 26 is 9% B. ओके ओके, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा. वेट, 25 एक्सप्लेन करता हूँ मैं. साक्षी वेट कर रहा हूँ. 27
27 is 25. Okay, 25. Very good. 25. Okay, now. So from 24 to 27 बताओ किसमें प्रॉब्लम है? 24 to 27. 25th. Okay. 26 unitary methods. Yes, definitely unitary method से ही करना है बेटा. All questions unitary method से ही करना है. Okay. (25) and 27 कर देना, right? 25th and 27. 90% of A, 30% of B. So X B is X% of A. Okay, no. So ये कैंसल, ये क्या हो गया? 3A equals to B हो गया. 3A equals to B. Okay, now convert 3 into percentage. क्या लिखेंगे? Convert 3 into percentage. 300%. Very good. 300% of A equals to B. Okay, मिल गया आपको वैल्यू X का. Question 27. 50% of XY, X minus Y, is 30% of X plus Y. Okay. Percentage cancel, 0 cancel. No. 5 बजा. 5X minus 5Y is 3X plus 3Y. So 2X is 8Y. Okay. So X is 4Y. X is 4Y. Now, अभी एज्यूम कर लो किसी बच्चे ने पूछा है कि if suppose X is 100, then Y is how much? Y is how much? No, man, गलत लिखा आपने. If X is 100, then Y is how much? 25. Okay, 25. Now, my question is, X is what percent of Y? No. Y is what percent of X? ऐसा क्वेश्चन है. Y is what percent of X? Y is what percent of X? 25%. Okay. समझ में आ गया 27? बेटा 25th. 90% of A is 30% of B. So 30 into 3 is 90. So 3A equals to B. यहाँ तो समझ में आ गया. 3A equals to B. Okay. And very good. Question number 28. Question number 28. is C. Okay. When is the logical question totally? No. 16 2 by 3%. 6 2 by 3%. And 0.3. No. First option, convert percentage into fraction. Okay. So 50 by 3 upon 100. 20 by 3 upon 100. And 3 by 10. Okay. So 2
1/6, 1/15, and 3/10. Which is greatest? Which is greatest? 3/10. Okay. No. मन सॉल्व कैसे किया आपने? LCM मेथड. 1/6 is 5/30. 2/15 is 2/30. Okay, and 3/10 is 9/30. Okay, so greatest value is D. First method. Second method, 16 2/3% already is in percentage. 6 2/3% already in percentage. 0.3 convert into percentage. क्या होगा value? 0.3 convert into percentage. 30%. Now, which is greatest? Answer 30. Okay. समझ में आ गया? So better method is which one? A or B? Okay. अभी सॉल्व करना है बेटा आपको. अरे समझ में आ रहा है ना सब स्टूडेंट को? Yes, good now. अभी सॉल्व करते हैं बेटा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 29 to 33. 29 to 30 ट्राई करो आप भी, मैं भी सॉल्व करता हूँ साथ साथ. 29 to 33. सब ला भाई जो तो मिल गया.
Okay जी, complete 29 to 33. Very good. Okay, वैल्यू चेक कर लेते हैं. आंसर ऑफ 29 इज सब बी भी लिखा है ना, बी और ए. मुस्कान ए लिखा है बेटा आपने. हाँ, इसका 140 आना चाहिए. ठीक है. 65% of a number is 21 less than 4/5 of the number, and 4/5 is 80%. 4/5 is 80%. The difference 15% is 21. So 100 is how much? Question number 30 is 3/4. Original fraction मैंने assume कर लिया x by y. Numerator is increased by 15%. So x into 115% upon y into 92%. That is 15/16. X into 115% upon y into 92% is 15/16. Okay. So value find कर लो. Answer is 3/4. Check कर लेते हैं. 23 into 5, 23 into 4. Okay. 4 4 is 16, 5 3 is 15. So answer 3/4. Okay. Question number 31 is 80. Okay. Similar to question number 29. Okay. Question number 32. 32 बहुत इंपॉर्टेंट है. 32 में स्टार लगा दो. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 32. इसका आंसर ऑलवेज लर्न 300 आंसर. 300 है ना इसका आंसर. 300. 75% of a number is added to 75. The result itself answer is 300. Asked by examiner in many exams. मतलब एवरी ईयर ये 2-3 एग्जाम्स में क्वेश्चन टर्न अप होता है. एवरी ईयर 2 to 3 एग्जाम्स. क्वेश्चन 32. ओके. एंड लास्ट 33. 12%. समझ में आ गया. 29 to 33. ओके. तो 30 समझ में नहीं आया बेटा. आलू की 30 में प्रॉब्लम है. क्वेश्चन ऐसा है कि मैंने फ्रैक्शन एज्यूम किया x upon y. ओके. नो, x is increased by 15%. So 15% increase means, Arushi, what is the meaning of 15% increase? Increase by 15% means 115%, and decrease by 8% means 92%. Okay. This equals to 15/16. Okay. So value find कर लो. X by y is 15 into 92 upon 115 into 16. Okay. 23 into 4, 23 into 5, 5 3 is 15, 4 4 is 16. 3/4. ओके. अभी आते हैं क्वेश्चन 34, 35, 36, 37. देखो ये 4 क्वेश्चंस में ना यू हैव टू एज्यूम थर्ड नंबर. एज्यूम थर्ड नंबर. तो थर्ड नंबर कितना एज्यूम करोगे? थर्ड नंबर कितना एज्यूम करेंगे? ऑलवेज 100. वेरी गुड. ओके. ऑलवेज 100 नाउ. तो सॉल्व करो तो समझ 34, 35, 36, 37.
और कंप्लीट 37 तक। तो बता दिया करो बच्चे, हो गया कंप्लीट। मैं तो वेट करता हूँ आप लोगों के आंसर का। बताओ 34 आंसर। 34 is B. 34 is B. ओके। और किसी ने सॉल्व नहीं किया 34? 34 सोहम, कनिका, आरुषि जी, आप प्रणव, किसी ने सॉल्व नहीं किया बच्चे 34 नंबर क्वेश्चन? तो बताओ तो आंसर। यस बेटा रियानी, अगर आप इंस्टेड ऑफ 100 इफ यू एज्यूम x, देन आंसर तो सेम आएंगे बट लॉन्गर मेथड। सो इन परसेंटेज ऑलवेज एज्यूम 100, ऑलवेज एज्यूम 100। ओके, नो। क्वेश्चन नंबर 35। 35 is A 75%. Okay, good. Question number बेटा 36 is 10%. Okay, 10%. And 37 is A 91 by ठीक है। 34 to 37 कोई प्रॉब्लम? 34 to 37, 36। ओके शुभम, नो 36 क्या है क्वेश्चन? Second number is how much percent less than first? Means 63 is how much less than 70? 63 is how much less than 70? 70 minus 63 is 7. So less percentage 7 into 100 upon 70. 37 more than second. So more equals to 120 minus 110, that is 10. More percentage 10 into 100 upon 110. Okay, ठीक है। अभी आते हैं, आई होप कि क्वेश्चन 1 to 37, from 1 to 37 you do not have any problem. Okay, good. Now अभी आते हैं मोस्ट एवरग्रीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, 39, 40 and 41. 38, 39, 40 and 41. Go through by all questions. First go through by all questions. Read करो इसको. Then I will ask some questions. 38, 39, 40 and 41. Okay. आप बहुत ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। ओके, रीड कर लिया आपने? What is the similarity between all four questions? Similarity between all four questions. Comparison, very good. Comparison, very good. Now, comparison. तो comparison में क्या होगा? If A is taller than B, it means कि B is shorter than A. वही होगा ना? If A is taller than B, means B is shorter than A. Comparison ऐसे ही होता है. So if A is greater than B, means B is smaller than A. Just opposite? No. तो पहले ये क्वेश्चन दो आंसर मुझे. If
A is 20 more than B. More than B. So B is how much less than A? Very good. Same value. Okay. Now I am changing question. If A is 20% more than B, so B is how much percent less than A? %20 होगा क्या? पहले ये 20% होगा? No. So always remember one point, okay? कि परसेंटेज में कभी भी सेम वैल्यू नहीं होगा. In percentage you will not get same answer. If here 20% more, it does not make 20% less. Okay? Other than 20%. Other than 20%. Whatever value, वो मैं explain करता हूँ. Okay? Other than 20%. Okay? But in number 20 more, so how much less? How much less? 20 less. Okay? 20% more, how much percent? 20% more, how much percent less? No idea, but 20% not. Okay? ये मैं लिख सकता हूं. No. अभी आते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे. Okay, no. If there are 2-3 methods, first, second and third method. First method, second method and third method. First method, a number is 20% more than the other. Suppose second number is x. So first number how much? 20% more. So x into 120%. That is 6x by 5. Okay. Now how much percent less? Okay. So 6x by 5 minus x means 6x minus 5x. So x by 5? No. Less percentage. Less by 100 upon 6x by 5. Answer 100 by 6, that is 16 by 3%. ठीक है. अगर आप ये x एज्यूम करते हो तो ये मेथड. और समझ लो ओनली. No. Second method, if second number is x 100, so first number how much? First number how much? %20 more. So how much? 120. Very good, Sakshi. 120. Okay. 100 into 120% now. So less is how much? Less 120 minus 100, that is 20. So less percent how much? Less percent is 20 into 100 upon 120. Answer 16 by 3%. अब मुझे ये बताओ, फर्स्ट मेथड इजी है या सेकेंड मेथड? So always go through by second method. ठीक है ना. अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, सर x and 100 सेम आंसर आएगा क्या? देखो बेटा, दोनों में सेम आंसर है. ओके, जिन्होंने पूछा था समझ में आ गया बेटा? नो. अब आते हैं थर्ड मेथड. ओके, थर्ड इज पप्पू मेथड. 20% more. So 20 upon 20% more means 20% more means 120. Good. So 120 upon 100 आंसर. ये सॉल्व हो गया आपका. 16 by 3%. Okay. 20 upon 120 into 100 आंसर. देखो तीनों में सेम आ रहा है.
which is easiest method? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड? समझ में आ गया? सो क्या करना है आपको, ऑलवेज ध्यान रखो, ऑलवेज, ओके नो। इसको मैंने नाम रखा है सिंगल परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज कॉन्सेप्ट, इंक्रीज और डिक्रीज कॉन्सेप्ट, ओके। सिंगल परसेंट होना चाहिए, मतलब एक ही परसेंटेज होना चाहिए। इफ question is increasing, then you have to find decrease. If question is decreasing, then you have to find increase. ठीक है, तो बहुत सिंपल है, x% increase, okay, means x upon 100 plus x into 100, okay. Now if x% decrease, x upon 100 minus x into 100, okay, ये नोट कर लो आप। और सॉल्व क्वेश्चन नंबर 39, 40, 41। साक्षी, आपने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि इजी मेथड आप लास्ट में क्यों रखते हो, है ना? अगर आपको डायरेक्ट में, सुनो, एक आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप बच्चों से, आपका ड्रीम कॉलेज जो भी हो, साक्षी आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है? कहाँ पे जाना चाह रहे हो आप, विच कॉलेज? सपोज, कोई नहीं ना, अगर सपोज आप क्लैट के स्टूडेंट हो तो आपका बैंगलोर होगा ड्रीम। इफ यू आर अपियरिंग फॉर BBA, देन IIM इंदौर, होटल मैनेजमेंट पूषा, ओके, PDPU, सबके अपने अपने ड्रीम कॉलेज होंगे, राइट? नो, तो आप मुझे ऑप्शन देना, अगर सपोज मैं आपको डायरेक्ट एडमिशन देता हूं विदाउट एनी हार्ड वर्क, विदाउट एनी वर्क, ठीक है, you will get admission in your dream college. And second, you are spending every day 5 to 10 hours and then you will get admission, okay? तो कौन सा ऑप्शन आप प्रेफर करोगे? एंड पूरे इंडिया सबके लिए हो, डायरेक्ट वाला नहीं। डायरेक्ट वाले में पंगा क्या है, सुनो मैं बता दूं। डायरेक्ट वाले में पंगा क्या होगा बेटा, नो, आप एक ही स्टूडेंट नहीं रहोगे, ध्यान रखना। डायरेक्ट में क्या होगा, आज क्लास में हमें स्टूडेंट्स, आई थिंक 29 स्टूडेंट्स आर देयर, 27, ठीक है ना? 27 में एक कॉलेज में कितना सीट होता है? एक कॉलेज में कितना सीट जनरली? 100, हाँ, 100 से 120, नो। अगर डायरेक्ट वो सीट देना आपको तो 27 बच्चे ऑल फाइट करेंगे, ऑल 27 बच्चे फाइट करेंगे, ठीक है? एंड ऐसे इंडिया में कितने स्टूडेंट्स होंगे जनरली? इफ 100 सीट्स, देन एस्पायरिंग स्टूडेंट्स मोर देन 1 लाख, ये फंडा होता है, ठीक है? सबके साथ पंगा है, नो। बट अगर आपको 5 to 10 आवर्स के बाद वर्क करने के बाद if you get admission, then first thing, ठीक है, जो आपको मजा आएगा, satisfaction। वो क्या आएगा? satisfaction आएगा, ठीक है, कि मैंने 10 आवर्स स्टडी करके मैंने एडमिशन लिया है, ठीक है, मैं मास का पार्ट नहीं हूं, ओके? इसके लिए ऑलवेज मैथ्स या किसी में भी, ओके, मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकता हूँ फंडा,
सारे क्वेश्चंस का, बट आपको मजा नहीं आएगा। एक बार बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, बट जब तक वर्क नहीं करो ना, आप कभी नहीं सीखोगे। तो अगर आपने 10 आवर्स एडमिशन वर्क करके और डायरेक्ट, आप हमेशा इसको प्रेफर करना, 10 आवर्स वर्क करने के बाद जो एडमिशन मिले, ठीक है, नॉट डायरेक्ट। समझ में आ गया? बस वही मैथ का फंडा है। ओके, हार्ड वर्क करो देन गेट आंसर, उसका एक अलग मजा है। तो यू शुड हैव मिनिमम 4 to 5 टाइप्स ऑफ मेथड, देन सेलेक्ट वन। समझे? इसके लिए मैं हमेशा पहले डिटेल मेथड में जाता हूँ, देन पप्पू मेथड। तो मेरा ये फंडा है कि हार्ड वर्क के बाद कॉलेज में जाओ, डायरेक्ट मत जाओ। ओके, अभी बताओ, मैं एक और थिंग बता रहा हूं। इन दिस टॉपिक, ठीक है, there are only certain number of questions, means 4 to 5 questions which are important for examination, only 4 to 5 questions, ठीक है। एंड डेफिनेटली मैं अगर आपको क्वेश्चन मार्क कर दूं तो 5 क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में वही 5 में से 1 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, should I teach all 50 or 100 questions to you? अगर मुझे पता है कि only 5 क्वेश्चन से आएंगे एग्जाम में, मुझे बताना चाहिए। यस नो बताओ कुछ भी। मैं आप यस पता क्यों बताना चाहिए, मन बताओ मेरे को वाई। जब मुझे पता है कि मेरे को 5 क्वेश्चंस मैं आपको मार्क करके दे देता हूँ, गारंटेड उसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे आप। बेटा एक बार यस बेटा सोहम, मैं आपको ना before your examination I will give you 85 important question of mathematics, 85 important question, ठीक है ना, and 60 to 80% every year, ठीक है, यहां से ही आते हैं क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन में से ही। अगर मुझे पता है कि 85 में से ही आता है, ठीक है, then why every year it is more than 100 hours, generally you spend more than 100 hours on mathematics, more than 100 hours, जबकि मुझे 85 क्वेश्चन ही टीच करना है। बिकॉज हार्ड वर्क करने के बाद जब आप सॉल्व करोगे ना, उसका सेटिस्फेक्शन अलग होता है, समझे? ये फंडा है। नो चलो बताओ, 38, 39, 40, 41। आंसर 38 का आंसर 38 बी, 39 ए, 40, 41 समझ में आ गया? 40 यस बेटा, 40% क्या है? 15% इंक्रीज, 15 में 115 into 100, ओके, तो 5 3 523, तो 300 by 23, 13 1 by 23% आंसर, ओके। ठीक है बेटा, अभी देखो मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 42 से 51, 42 to 51 आपको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अगर 20% इंक्रीज है, ओके, तो वैल्यू 120%, इफ 20% डिक्रीज देन वैल्यू 80%, ठीक है। नो क्या करना है आपको, 100 एज्यूम कर लो सारे क्वेश्चन, 100 एज्यूम कर लो सारे क्वेश्चन में, ठीक है।
जैसे क्वेश्चन नंबर आप मैं ले रहा हूँ 42. I have assumed 100. First 20% increase means 120%. Then decrease 20% means 80%. ठीक है. Okay. तो वैल्यू कितना बनेगा 120 by 100 and 80 by 100. ठीक है. वैल्यू 96. ठीक है. आपने कितना एज्यूम किया था 100 और वैल्यू कितना है 96. तो डिक्रीज और इंक्रीज डिक्रीज और इंक्रीज डिक्रीज बाय 4%. कौन आ गया डिक्रीज बाय 4%. ठीक है. अगर मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं कि फर्स्ट टाइम इंक्रीज 20%, देन इंक्रीज 30%, इंक्रीज 20% एंड 30%. तो टोटल पे इफेक्ट क्या आएगा तो 100 into 120 by 100 into 130 by 100 कैंसल. वैल्यू 156. आपने एज्यूम 100 किया वैल्यू 156. समझ में आ गया नो. तो अब 42 से 51 सॉल्व करो 42 to 51. ओके. कपड़ा बेटा कंप्लीट.
लेती हूँ। ले लो। पापा मीठा कबे? पापा ने मीठा पीती। ले। ए पापा पापा। बेटा अलौकिका आप क्लास में हो? आपने कोई आंसर नहीं दिया है। अर्जब पटेल, हिमाद्री, प्रांशु, स्तुति पारेख, आप लोगों ने कोई आंसर नहीं दिया बेटा क्लास में। बताओ आंसर क्वेश्चन नंबर 42 is D 4% decrease. Okay. Question 43 is B 25%. Okay. Now question 44. तो मैं लास्ट में बेटा सॉल्व करता हूँ, वेट करो। 44 is 40%. Okay. 45 is it 10% profit. Okay. 46 1%. Okay, very good. 47 B. Okay. 48 A. No. 49 12% deficit. 50 C correct है। 51 is A. No. अब मुझे ये बताओ, ऑनेस्टली बताना, ये ऑल आंसर्स करेक्ट हैं आपके, ऑल आंसर्स करेक्ट हैं, बट कुछ भी समझ में आया किसी बच्चों को? ऑनेस्टली बताना मेरे को, आंसर करेक्ट है बट समझ में आया नहीं है ना? आरुषि ने लिखा नो। अच्छा चलो, जिनको समझ में आया ना बेटा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। एक क्वेश्चन नंबर मैं लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 42 ही ले रहा हूँ आपसे, 42 ले रहा हूँ मैं। 20% इंक्रीज देन 20% डिक्रीज, राइट? तो इफ फर्स्ट नंबर इज 20% इंक्रीज एंड उसके बाद अगर 20% डिक्रीज हो रहा है तो वो 120 का 20% नहीं होगा? जिनको समझ में आया उनसे मैं पूछा हूं। इंक्रीज 120 हो गया, इंक्रीज 120, उसके बाद 20% डिक्रीज है तो 120 का 20% होगा ना डिक्रीज, या 100 का होगा? ओके, साक्षी ने लिखा है इट्स इनिशियल वैल्यू, शुभम एंड मन ने लिखा है 120। साक्षी आप टोटली रॉन्ग हो। ओके, इसमें आपका आंसर आ गया, ठीक है, बट समझ में नहीं आया आपको। अभी आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 46। ओके, जिनको समझ में आया उनके लिए क्वेश्चन है। Commodity diminished by 10% and consumption increased by 10%. Then what is the relation between consumption and tax on commodity? कोई रिलेशन है? अच्छा, इनवर्स है, शुभम ने इनवर्स लिखा, ठीक है बेटा। बेटा क्वेश्चन 46, शुभम आपने इनवर्स लिखा, राइट मैम। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 50। Length and breadth increase by 10 and 20%. So what is the relation between length and breadth? Inverse or direct? Or no relation? समझे?
मैं समझ में किसी को नहीं आया, ऑनेस्टली बताओ, मैं आंसर सबके करेक्ट है, समझे? समझ में किसी को नहीं आया बट आंसर सबके करेक्ट है। ओके, यही रीजन है कि ऑलवेज 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 फर्स्ट आई गो टू डिटेल मेथड, देन अनदर ऑल्टरनेट मेथड, देन पप्पू मेथड। ये पप्पू मेथड से यू ऑल हैव सॉल्व, ओके, बट लॉजिक किसी का क्लियर नहीं है। इफ एग्जामिनर विल चेंज सम डेटा, ओके, आप सबकी हैप्पी बर्थडे हो जाएगी। इसके लिए ऑलवेज फर्स्ट लर्न डिटेल मेथड, देन ऑल्टरनेट, देन पप्पू। पप्पू से कभी स्टार्ट मेथड मत करो। समझ में आ गया? क्लियर? नो। अब मैं आपको आंसर देता हूं, चलो। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 42 टू 51 43, ठीक है ना? वेरी गुड। 43 45, ओके ना। पहले मैं आपको डिटेल मेथड समझाता हूँ कोई भी एक क्वेश्चन का, फिर समझ में आपको आएगा। मैं लेता हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 50 ले लेता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 50 देख लो आप, 50 देख लेते हैं फर्स्ट, ठीक है ना? सपोज दिस इज रेक्टेंगल। आज अपने 51 तक ही करेंगे, नॉट मोर देन दैट। सपोज दिस इज रेक्टेंगल, राइट? मैं दो मेथड से जा रहा हूँ। फर्स्ट मेथड आई हैव एज्यूम्ड x एंड y, सेकेंड मेथड आई हैव एज्यूम्ड 100 एंड 100, ठीक है? आपने एज्यूम कर सकते हैं x y 100 100, यस नो, कुछ बताओ क्यों बेटा? अच्छा, वेरी गुड। मैं ये क्वेश्चन का था मेरा एक्सपेक्टेशन ऑफ। रेक्टेंगल में दोनों इक्वल क्यों नहीं कर सकते हैं? ये किसने बोला? हाँ, ठीक है, ना, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अब मैं बता रहा हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर में साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। नो, दोनों में सेम फॉर्मूला है, दोनों में सेम फॉर्मूला है। यस, तो मैं क्यों नहीं लिख सकता हूँ दोनों का सेम साइज? क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, परसेंटेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डोंट वरी। ओके, डेफिनेटली यू कैन एज्यूम 100 एंड 100, so no problem. ओके, अभी देखते हैं। एक्स एक्स कर लो बेटा, कोई चलो, आपको नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है तो क्या करना है? जो बताओ, 50 करना है आपको? जो बताओ, चलो 50 कर लो, कोई दिक्कत, 50 कर सकते हैं। लेंथ इज इंक्रीज बाय 10%, फर्स्ट एरिया इज xy, okay. Now new length is how much? New length is x into 110%, okay, and new breadth is y into 120%, ऐसा लिख सकते हैं। तो 11x by 10 and 12x by 10, right? Now so area 11x by 10 into 12x by 10 is 132x, sorry, y upon 100, okay. Old area xy, new 132 xy by 100, so increase is 132 by 100 xy minus xy, so 32 xy by 100 लिख सकते हो आप। यहां तक समझ में आ गया?
Okay, so increase percentage how much? Increase percentage, increase into 100 upon base, आंसर इज 32%. ठीक है, ये रहा फर्स्ट मेथड. ओके, नाउ सेकेंड मेथड. 100 एरिया कितना हुआ? एरिया इज 5000. नो, न्यू लेंथ हाउ मच? न्यू लेंथ 100 into 110%, that is 110. 50 into 120%, 60. So new area 110 into 60 means 6600. तो इंक्रीज कितने से हुआ? इंक्रीज 1600. तो इंक्रीज परसेंटेज 16 into 100 upon 5000. आंसर इज 32%. ठीक है, तो मुझे ये बताओ ए एंड बी में कौन सा इजी है? बी. सो आप ए गिव्स यू करेक्ट आंसर बट लॉन्ग मेथड. ठीक है, कभी फॉलो नहीं करेंगे इसको. ऑलवेज फॉलो बी. नो, अभी आता है अनदर मेथड. ठीक है ना, अभी देखो क्वेश्चन 41 से 50, 42 टू 51 देयर आर वन सिमिलरिटी. आप कोई भी क्वेश्चन रीड कर लो, मल्टीप्लिकेशन का कलेक्टिव इफेक्ट फाइनल पे आता है. मल्टीप्लिकेशन का कलेक्टिव इफेक्ट फाइनल पे आता है. चेक करो, लाइक क्वेश्चन नंबर 50 लेंथ एंड ब्रेथ का कलेक्टिव इफेक्ट कम्स ऑन एरिया. ये आ रहा है? यस, नो? इसका इफेक्ट आएगा एरिया के ऊपर? नो. लाइक क्वेश्चन 46 में नंबर आपसे टैक्स एंड कंजम्पशन का कलेक्टिव इफेक्ट आपके बिल पे आएगा. सपोज टैक्स इंक्रीज हुआ तो बिल इंक्रीज होगा, कंजम्पशन इंक्रीज हुआ तो बिल इंक्रीज होगा. बनेगा ऐसा? कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं. सपोज आपने फर्स्ट टाइम किसी नंबर को इंक्रीज किया, सेकेंड टाइम अगेन इंक्रीज कर रहे हो, तो इस दोनों का कलेक्टिव इफेक्ट फाइनल के ऊपर आएगा. ओके, तो जब कभी भी whenever collective effects come on final, okay, always follow Papu method, and that method जो आपने सॉल्व किया है. समझे? कौन सा मेथड है जो आपने सॉल्व किया है? ऑलवेज एज्यूम 100 एज ए फर्स्ट नंबर. ऑलवेज एज्यूम 100 एज ए फर्स्ट नंबर. ठीक है, देन if increase, so into 100 plus x by 100. If decrease, then 100 minus x by 100. Okay, ये फंडा याद रखो आप. ठीक, अब बताओ मुझे किस में प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर बताओ. किसी में प्रॉब्लम नहीं है? चलो, और प्रॉब्लम नहीं है तो वेरी गुड, एक्सेलेंट. नो, होमवर्क है आपका फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 51. इसको आप अगेन सॉल्व कर लोगे वन टाइम. ओके, नहीं ऐसा नहीं बेटा, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों एज्यूम करने का. क्वेश्चन में जो दिया हो वो फॉलो करो. अगर इंक्रीज दोनों हो रहा है, दोनों को इंक्रीज करो. देखो इसमें कितने टाइप से क्वेश्चन हो सकते हैं. लाइक क्या होगा? सपोज 20% है एंड 30%. ठीक है, तो फर्स्ट टाइप में भी 20% इंक्रीजिंग, 30% इंक्रीजिंग. सेकेंड
20% decreasing, 30% also decreasing, and third type 20% increasing, 30% decreasing. ठीक है, इतने टाइप हो सकते हैं. नो, तो क्या करना है, यू हैव टू एज्यूम 100 एज फर्स्ट नंबर इनटू 20% इंक्रीज मींस 120% and 30% increase means 130%. So new value would be 156. Okay, आपने एज्यूम कितना किया था 100, so answer 56% increase. Okay, in second question 100 into 20% decrease means 80 by 100 into 30% decrease means 70 by 100. So value क्या बनेगा 56. Okay, so you have assumed 100 and you got 56. So increase or decrease? Increase or decrease? पहले ये बताओ, increase or decrease? So decrease by how many percentage? Decrease by how many percentage? 100 में से 56 माइनस करो. 100 minus 56, 44% decrease. 100 minus 46 beta, out of 46, not 6. Sorry, 100 minus 56. Answer 44%. Okay, now last 20% increase, 30% decrease. So 100 into 120 by 100 into 70 by 100. Okay, so value 84. So decrease or increase? Decrease. Decrease by how many percent? 16%. Okay. समझ में आ गया? ये था आपका परसेंटेज टॉपिक. एक्सरसाइज 1 होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 to 51 अगेन सॉल्व करना है. अगेन ओके. तो मैं लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूं. ओके जी. बाय बेटा, गुड नाइट.